seen, good evening. Yesterday we have seen potential due to dipole and equipotential surface we were about to begin. And before that, some numericals were given to you. Okay. So whatever the homework you are getting, you solve and submit on my personal number, okay, on my personal WhatsApp number. Clear to everybody? Those who are not sending the homework, I will stop giving them link. Tomorrow onwards, you will not get the link. All right? Sure. Okay. This question was completed. 2.2. Could you complete? Direct question was there. Hint was given to you. Well, you have to put the value. कैसे करेंगे? Arindam, are you there? Naman, बोलो कैसे करेंगे? 6 hexagon में 6 charges होंगे ना? 6 times of the potential due to one charge. 6 times due to the potential due to one charge. 6 kq by r. 6 into 9 into 10 to the power 9. Q कितना दिया? 5. 10 to the power minus 6. 5 micro है. और distance is almost 0.1. Solve it, that whatever the calculation comes, that will be volt. What about this? 2.7 into 10 to the 2 power point 6. कितना आ रहा है? 2.7 into 10 to the power 6. 10 to the power 6 volt. ठीक है. तो डायरेक्ट था ये. What about 2.1? How many answers are possible in this case? 2.1 में how many answers are there? There is a charge 5 into 10 power minus 8 and minus 3 into 10 power minus 8, located 16 centimeter apart. At what points on the line joining the two charges is the electric potential 0? Take the potential at infinity to be 0. ये तो convention है. Generally, sometimes it is not given, but NCERT books properly gives the complete question. ठीक है? This is a convention. Potential at infinity is 0. That is how we got this formula KQ by R. ठीक है? चलो, let me ask you. ये वाला चार्ज जो है 5 into 10 to the power minus 8 है, and here is the minus 3 into 10 to the power minus 8. ठीक है? Distance is 16 centimeter. We'll keep it in centimeters only. Answer will be in centimeters. तो ये बताओ, ये जो स्पेस 1 है, स्पेस 2 है, स्पेस 3, कहाँ कहाँ पर पोटेंशियल 0 हो सकता है? Space 1 is left side of this system. Space 2 is in between the two charges. Space 3 is the right hand side. ठीक है, कहाँ पे पोटेंशियल 0 हो सकता है? Sir, all the three sides. All the three sides. कैसे? लेफ्ट साइड में हो सकता क्या? बोलो. No, so, second and third में होगा if positive charge is there, and if negative charge is there, so 1 and 2. देखो, what clue I have given you कि देखो जो मैग्नीट्यूड में छोटा है ना, उसके आसपास होगा. मैग्नीट्यूड में जो बड़ा है उस तरफ नहीं होगा. तो मैग्नीट्यूड में 3 वाला छोटा है. एक तो पॉइंट यहाँ कहीं पे, सॉरी एक मिनट, एक तो पॉइंट समवेयर वी आर गेटिंग हियर, अदर पॉइंट हियर, बाकी पॉइंट आई टोल्ड यू मेक द सर्कल एंड locus of these zero potential will be the circle, है ना? But at least 2 point we can say, one is here, other is this side. If I say okay, I don't know anything, if I take the point here, suppose हमने point P यहाँ पे लिया, P at distance x from the bigger charge, so can we take it and solve the question? Answer is yes. If we take the point here also, our answer will come. Let us solve it. Let us see. You can take anywhere. In fact, on the line joining, you will get the point, and even other places. I told you, it is not like electric field. Electric field में on the line only, है ना? Only one place है ना? इसमें देखते हैं. चलो, let us see. Point P is the zero potential point. So VP is equal to V1 plus V2. So
व्हाट इज द कंडीशन? पोटेंशियल शुड बी 0 और ये V1 इज ड्यू टू द 5 वाला जो चार्ज है, दैट विल बी K। पावर में नहीं लिख रहा हूँ बिकॉज लेफ्ट साइड में 0 है और डिस्टेंस भी मैं सेंटीमीटर में रख रहा हूँ। दूसरा क्या है? K। हेलो सर। हेलो सर। हाँ हेलो, हाँ हाँ सर बोलो क्या आपकी प्रॉब्लम आवाज है? नहीं आ रही। हेलो। मेरी आवाज नहीं आ रही? ओके होल्ड ऑन। नहीं ठीक है मेरी। आ रही है हाँ सर, अभी मेरे आ को रही तो है, आ अभी रही आ है। रही है, अभी आ रही है, अभी आ रही है। अभी आ रही? हाँ सर, हाँ हाँ सर। सर। आ रही? चलो दिख रहा है अभी तुम्हें? ओके लेट मी सी कौन कौन था। अरिंदम has joined. आशा, रिंकी, शादी, ओके चलो। तो पॉइंट पी पर हम लोग चेक कर रहे हैं विच इज लेफ्ट साइड ऑफ द बिगर चार्ट। तो अनम्यूट कर लो तुम लोग, म्यूट कर लो तुम लोग, जहां से डिस्टर्बेंस आ रहा है प्लीज म्यूट इट, अदर्स आर गेटिंग डिस्टर्ब। चलो ठीक है। तो x इज द डिस्टेंस फ्रॉम 5, तो -3 से कितना होगा? पावर आई एम लिविंग, -3 से कितने डिस्टेंस होगा पॉइंट पी का? दिस मच डिस्टेंस विच इज x + 16। तो डिस्टेंस जो है पॉइंट चार्ज का पॉइंट तक का लिखा जाता है x + 16, ये भी सेंटीमीटर में, ठीक है। तो इसको अगर हमने के कैंसिल कर दिया और उसको राइट हैंड साइड में लेके गए, 5/x इज इक्वल टू 3/x + 16, क्रॉस मल्टीप्लाई 5x + 5 × 16 80 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3x। इफ वी फर्दर सॉल्व इट, it will be 5x - 3x is equal to -80. Therefore 2x is equal to -80, x is equal to -40 centimeter. ठीक है। तो इज दिस आंसर राइट और रॉन्ग? ये आंसर सही है क्या? आंसर इज वेरी मच राइट। सी हाउ x मीन मतलब माइनस साइन मीन्स दैट इज 40 सेंटीमीटर right hand side of 5 into 10 to the power -8 coulomb charge. Why right hand side? Because हमने इधर x को प्लस लिया है, तो माइनस मीन समवेयर दिस साइड हियर, है ना। इन फिजिक्स whatever sign we, whatever the direction we take, suppose हमने यहाँ पे x प्लस लेफ्ट साइड में प्लस लिया था, अपना आंसर माइनस आ गया, इट मीन्स राइट हैंड साइड में कहीं पर होगा 40 सेंटीमीटर ऑन द अपोजिट डायरेक्शन। ऐसे ही इन नेक्स्ट चैप्टर करंट जब हम पढ़ते हैं ना, ओम्स लॉ, सो मेनी बैटरीज आर देयर, वी यूज द ओम्स लॉ और अदर लॉ एंड फाइंड आउट द करंट इन द लूप, and we give the direction of flow of current also, where we don't know which battery is dominating and which side current will be flowing. In that case अगर current की value positive आती है, our direction is right, current की value negative आती है, तो whatever the direction we have given opposite to that current is flowing. So many other places you will come across such situation where you don't have the idea about the right answer, right position, right values. You take any direction, solve it, and if your answer coming positive, your direction is correct or your location is correct. If it comes negative, and then it will be opposite to that. जैसे तुम लोगों ने रोटेशन मोशन में किया होगा सपोज। चलो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ। ये रोटेशन मोशन में सपोज वी हैव दिस सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर, यहाँ पे हम फोर्स लगाते हैं, सपोज दिस इज अ सॉलिड स्फीयर। तो फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन इधर होगा, आगे होगा कि पीछे होगा? बोलो। रफ सरफेस है, रफ सरफेस है, तो फ्रिक्शन आगे होगा कि पीछे होगा? चलो बताओ, लेट मी आस्क यू। पीछे। खुश पीछे किसका? आर्यन किसका आंसर है ये? आर्यन सर। आगे आर्यन पीछे। आगे किसका आंसर है? आगे खुशी। आगे किसका? खुशी का। और खुशी। तो इसमें हमें क्लू नहीं मिलता है, हमें वी डोंट नो, वी कैन नॉट से आगे होगा कि पीछे होगा until unless you solve for full question. रिंग होगा तो किधर होगा? मतलब चलो रिंग होगा तब किधर होगा? बोलो। सॉलिड स्फीयर है तो somebody of some of you are telling आगे, some of you are telling पीछे,
रिंग का बताओ खुशी, चलो तुम ही बताओ खुशी, रिंग का किधर होगा? आगे ही होगा। रिंग का फ्रिक्शन होता ही नहीं, जीरो होता है रिंग का, ठीक है। चलो इसलिए रिंग नहीं दिया मैंने। देखो क्या होता है, सेंटर ऑफ मास पे जब फोर्स लगाते, जस्ट थोड़ा सा पॉइंट एक्स्ट्रा पॉइंट है, जस्ट विल आई जस्ट क्विकली टेल यू आगे। ओके केवल मैं इसी पॉइंट को बताता हूँ, आई एम नॉट टेकिंग इनटू द डीप, जस्ट इसी पॉइंट को बता देता हूँ बिकॉज वी हैव टू सी अदर पॉइंट्स आल्सो। देखो इसमें क्या होता है, यू कैन टेक इट फॉरवर्ड आल्सो, सब फॉरवर्ड लेके सॉल्व करो। इक्वेशन की ट्रांसलेशन मोशन की इक्वेशन लिखो, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए टॉर्क की इक्वेशन लिखो, नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, सॉल्व कर लो। अगर एफ की वैल्यू तुम्हारी पॉजिटिव आ गई, सपोज एफ कम्स से फॉर एग्जांपल 10 न्यूटन, तो राइट फॉरवर्ड है ना। अगर तुम्हारी एफ की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो इसका मतलब अपोजिट है। मैग्नीट्यूड कभी रॉन्ग नहीं आता है, टू यू टेक एनी डायरेक्शन। अगर जीरो आ गया तो नो फ्रिक्शन, रिंग में जीरो आता है जब हाईएस्ट पॉइंट पे लगाते हैं ना, नो। तो इसमें क्या होता है, यू टेक एनी डायरेक्शन, फॉरवर्ड पॉजिटिव और बैकवर्ड ले लो, मतलब हमें पॉजिटिव नहीं बोलना है, हमें फॉरवर्ड लिख के इक्वेशन बना के सॉल्व कर लेना है। एफ की वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो हमारा आंसर सही है, फ्रिक्शन आ गई, एफ की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो हमने जो डायरेक्शन ली है उसकी अपोजिट, तो इसमें आगे आएगी, है ना। एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है, देखो सेंटर ऑफ मास से ऊपर जाते हैं ना, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोर्स लगाने से फ्रिक्शन जीरो हो जाता है, उसके ऊपर जाने से फ्रिक्शन अपनी डायरेक्शन फॉरवर्ड कर लेता है, पहले पीछे रहता है, सेंटर ऑफ मास पे लगाएंगे तो पीछे रहता है, और एक पर्टिकुलर हाइट पे जाने पे जीरो हो जाता है, फिर उसके और ऊपर जाने पे फ्रिक्शन अपनी डायरेक्शन चेंज करके आगे कर लेता है। बट रिंग में हाईएस्ट पॉइंट पे जाके जीरो होता है, इसलिए डायरेक्शन पीछे रहती है फ्रिक्शन की, हमेशा हाईएस्ट पॉइंट पे जीरो होता है। चलो ये एक्स्ट्रा पॉइंट था। तो यू नेवर अफ्रेड ऑफ सॉल्विंग एनी क्वेश्चन, तुम्हें नहीं पता है तुम उसको सॉल्व कर डालो कोई भी डायरेक्शन लेके, और तुम्हारा आंसर जो है पॉजिटिव आ गया तो तुम्हारी डायरेक्शन सही है, नेगेटिव आ गया तो अपोजिट डायरेक्शन। गॉट इट। चलो तो ये भी क्वेश्चन में अपना आंसर नेगेटिव आ गया तो ये भी सही है, बट डोंट डू इट बिकॉज बोर्ड एग्जामिनेशन में क्या एग्जामिनर मे नॉट बी नोइंग दीज पॉइंट्स, है ना। तो वो तो देखेगा पॉजिटिव होना चाहिए, तुम्हारा आंसर नेगेटिव है, ही मे कट योर मार्क्स, बट यू हैव टू राइट द एक्सप्लेनेशन नीचे पूरा, है ना। देन ही कैन नॉट कट द मार्क्स। अगर तुम्हें कुछ ऐसा कंट्रोवर्सी होती तो इट कैन बी अगेन रीचेक्ड, बट डोंट लीव द कंट्रोवर्सी, जैसा मैंने कल बताया था वैसे सॉल्व करो, ठीक है। तो इफ यू वांट टू जस्ट टेक द स्नैपशॉट टेक इट, अदरवाइज नॉट रिकॉर्ड। ये सब हो गया था पॉइंट, है ना। ये डेरिवेशन हम लोगों ने कर लिए थे, ये तुम्हें याद करने हैं, मैंने तुम्हें फार्मूले बताए थे, एज इट इज लर्न कर लो, है ना। इसमें मेरे ख्याल से हाँ करेक्शन कर दिया था मैंने, स्क्वायर नहीं था स्क्वायर कर दिया। ये वाला दिस यू जस्ट लीव इट, ये मैंने जो एक्स्ट्रा मेथड बताया ना इसको छोड़ दो, है ना, इसको छोड़ दो, पहले वाला ही करो, एंड दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। चलो नाउ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, तो दिस टॉपिक इज वेरी इजी, बोर्ड एग्जामिनेशन में इसका क्वेश्चन आता है, शॉर्ट क्वेश्चन 1 मार्क्स और 2 मार्क्स, 1 मार्क्स का ही आता है। देखो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर दोज सरफेसेस whose potential remains same throughout। पोटेंशियल याद है किसको बोलते हैं? पोटेंशियल याद है तुम लोगों को? पोटेंशियल किसको बोलते हैं? बोलो, पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस जो है दैट मेक्स द करंट फ्लो, है ना। ओम्स लॉ है ना पोटेंशियल डिफरेंस। ये बताओ तुम लोग, लाइव वायर्स होती है ना, उसके ऊपर बर्ड्स बैठ जाते हैं, उसमें काफी हाई वोल्टेज भी रहता है। अगर हाई टेंशन वायर्स हैं जो पावर स्टेशन से सिटी तक आती है, उसमें तो 10,000 वोल्ट से ज्यादा होता है, टू रिड्यूस द लॉसेस, ट्रांसमिशन लॉसेस। घर में जो नॉर्मल अपने रूम के बाहर जो वायर्स दिखती हैं वो 220 वोल्ट की होती, बर्ड्स उसके ऊपर बैठ भी जाते, कुछ नहीं होता। क्यों? पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, पोटेंशियल तो है, दोनों पैरों के बीच में पोटेंशियल 220 वोल्ट है ना, तो करंट डजंट फ्लो। ओम्स लॉ क्या बोलता है? पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी करंट फ्लो होगा, है ना। तो of course these points we will be coming in the, we will be discussing in the second chapter, but I am asking you potential का आइडिया तुम्हें रहना चाहिए, it is related to work done per unit charge, है ना। हमें किसी पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है तो चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट पर लेके आओ, कितना वर्क करना पड़ेगा, और 1 कूलम चार्ज ला रहे तो वही पोटेंशियल हो जाएगा उस पॉइंट का। और पोटेंशियल डिफरेंस के लिए कैसे डिफाइन किया था? वर्क डन इन शिफ्टिंग द 1 कूलम चार्ज बिटवीन द 2 पॉइंट्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना।
जितना वर्क करना पड़ेगा 1 कूलम चार्ज को शिफ्ट करने में, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा उन दो पॉइंट्स के बीच में, ठीक है। तो दिस इज व्हाट द चैप्टर इज गोइंग ऑन, राइट। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू द पॉइंट चार्ज, है ना। पॉइंट चार्ज जो है प्लस क्यू दिखाया है इसमें एनसीईआरटी बुक में। कॉन्सेंट्रिक शेल्स, ये 3 डायमेंशन है, इट इज नॉट द 2 डायमेंशन। कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स सेंटर एट चार्ज, चार्ज पे उसका सेंटर होगा। क्यों ऐसा? बिकॉज V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला ये होता है, आर डिस्टेंस पे जितने पॉइंट होगा सबका पोटेंशियल सेम होगा। एक स्फेरिकल शेल बन जाएगा, सर्कल नहीं है, ये शेल है, ठीक है। इस पॉइंट से हम बोल सकते हैं। और उनके बीच का गैप भी चेंज हो रहा है। नियर टू द चार्ज दे आर क्लोजर, दूर जो है गैप बढ़ गया है। तो वो क्यों? बिकॉज इसकी प्रॉपर्टी हम लिखेंगे, जहां पर फील्ड स्ट्रांग होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस आर क्लोजर। क्यों होती है? जब हम रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल पढ़ेंगे इसी चैप्टर में आगे, तो वो भी पता लग जाएगा क्यों पास पास में होती है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का रिलेशन अभी डेरिवेशन है आगे, तो बट फिलहाल अभी इसमें क्या है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पास में है पहले, बाद में दूर होती जा रही। अच्छा, इस बार क्वेश्चन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इंडिकेट करो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इंडिकेट करनी है साथ में, पॉजिटिव चार्जेस है तो फील्ड लाइंस विल बी रेडियली आउटवर्ड, है ना। तो ऐसे बनाना पड़ेगा फील्ड लाइंस के साथ। और नेगेटिव चार्ज है तो सर इक्विपोटेंशियल, हाँ हेलो, हाँ बोलो। एनी डिफिकल्टी, एनी डाउट? एनीबॉडी वांट टू आस्क एनी डाउट? नो सर। नो, चलो। अगर वो निगेटिव है चार्ज, बीच में प्लस की जगह माइनस है, बोलेंगे ओके क्यू लेस देन 0 के लिए ड्रॉ करो, तो बीच में माइनस दिखाना पड़ेगा। और फील्ड लाइन भी बोले अगर ड्रा करो तो एरो दिखाने पड़ेंगे, ऐसे एरो टुवर्ड्स दिखाने पड़ेंगे। इक्विपोटेंशियल सरफेस विल नॉट चेंज, ठीक है। तो नाउ दे हैव स्टार्टेड अलोंग विद द फील्ड लाइंस, पहले जो है विदाउट फील्ड लाइंस पूछते थे, है ना। नाउ ओके, पहले हम इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी देख लेंगे, पॉइंट देख लें, फिर हम आते हैं उसमें, क्योंकि ये वन पॉइंट इज आई हैव टू एक्सप्लेन यू व्हाई दिस शेप इज देयर। जो सेकंड केस में शेप ऐसा क्यों है उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है, देखो। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, पहली प्रॉपर्टी क्या है? फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, है ना। इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होंगे, जैसे कंडक्टर है, चार्ज कंडक्टर है, उसके सरफेस पे पोटेंशियल सेम रहता थ्रू आउट। फील्ड लाइंस अगर परपेंडिकुलर नहीं होंगी तो फोर्स लगेगा चार्जेस के ऊपर, करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग। इसीलिए फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द चार्ज बॉडी एंड चार्ज बॉडी विल बी जनरली विल बी हैविंग द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। जरूरी नहीं है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस हो, मतलब चार्ज हो उसके ऊपर, बट इन केस ऑफ द स्फेरिकल शेल, है ना, चार्ज सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर, उसमें तो तुम्हें दोनों है, तो नन ऑफ द कंपोनेंट शुड बी along the surface, है ना, इसलिए परपेंडिकुलर होना चाहिए फील्ड लाइंस एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस। अकॉर्डिंग टू दैट ऑल द डायग्राम्स आर ड्रॉन, दे डू नॉट इंटरसेक्ट। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसी प्रॉपर्टी है, ये भी वैसी ही प्रॉपर्टी है ना, फील्ड लाइन जैसी। इक्विपोटेंशियल सरफेस आर क्लोजर इफ द फील्ड इज स्ट्रॉन्गर। पास में जो है फील्ड लाइन, इक्विपोटेंशियल सरफेस पास, फील्ड स्ट्रॉन्ग है तो पास पास रहती है, बाद में गैप बढ़ता जाता है, उसका एक्सप्लेनेशन आगे है, आगे टॉपिक्स में है इसका। वर्क डन टू मूव द चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0। पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला पढ़ा था बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर। अगर पोटेंशियल ए एंड बी का इक्वल है तो लेफ्ट साइड में 0 आ जाएगा, तो वर्क डन विल बी 0, ठीक है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर। तो जैसे अभी देखो ये है इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये तुम्हारी टेक्स्ट बुक के डायग्राम है 2.11। अगर दोनों पॉइंट चार्ज, दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, फिर से कॉन्सेंट्रिक नहीं सॉरी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, डायपोल करिए, फिर से कॉन्सेंट्रिक शेल्स बन रहे हैं और इधर बोथ आर पॉजिटिव, है ना। तो उसमें कॉन्सेंट्रिक शेल भी बनने और ये ऊपर से एक ऐसे एनवेलप भी आ रहा है ना। तो इसका एक्सप्लेनेशन ऐसे रहता है, देखो पॉजिटिव फील्ड लाइंस ऐसे निकलती है इस तरह से, है ना।
तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होंगे। यहाँ पर ये ऐसा है, यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करो, तो जो भी सरफेसेस तुम्हें दे रहे दिख रही है अकॉर्डिंग टू द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ये मतलब आई मीन ये वाली प्रॉपर्टी कौन सी, फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर, है ना, फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द, तो ये जो फाइनल जो आता है ना, फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर रहती है ना, ऐसे दिखा था, दोनों पॉजिटिव है तो ऐसे आएंगी, ये इधर आती फिर ऐसे आती, तो सब जगह परपेंडिकुलर रहेंगी ऐसे, ठीक है, यहाँ पर भी। तो ये तुम्हें एज इट इज लर्न करनी है, बस कोई एक्सप्लेनेशन देना है दोनों में डिफरेंस क्यों है। इसमें फील्ड लाइंस कैसी आएंगी, पॉजिटिव, इसमें ऐसे आएंगी, देखो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ऐसे, पॉजिटिव से नेगेटिव, सॉरी राइट साइड में पॉजिटिव, तो यहाँ भी जब ऐसे आएंगी तो ये ऐसे रहेंगी, फील्ड लाइन इक्विपोटेंशियल सरफेस से परपेंडिकुलर रहेंगी, जस्ट लेट मी शो इट, ऐसे आती ना, ऐसे, तो परपेंडिकुलर रहेंगी उस पर्टिकुलर सरफेस से, ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस से। यूनिफॉर्म फील्ड के लिए फील्ड लाइंस ऐसे हैं तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे आएंगी, ठीक है। यूनिफॉर्म फील्ड में इसको क्या बोलेंगे, इक्विडिस्टेंस पैरेलल प्लेन्स, इक्विडिस्टेंट पैरेलल प्लेन, यूनिफॉर्म फील्ड के लिए पैरेलल रहेंगे, ठीक है। गैप बराबर रहेगा, सपोज ये 100 है, 100 वोल्ट है, ये 90 वोल्ट है, 10 का डिफरेंस है, सपोज ये 100 वोल्ट 90 वोल्ट, देन तुम्हारा 80 वोल्ट, 10 का डिफरेंस, इसमें गैप बराबर है, बट इसमें ऐसा नहीं है, ये इसमें सपोज पहला वाला 100 है ना, 10 का डिफरेंस है, सपोज ये भी 10 का डिफरेंस, इसमें गैप बढ़ गया है, इसमें थोड़ा कम है, इसमें थोड़ा कम है, 10 के डिफरेंस में भी गैप बढ़ेगा, बिकॉज नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, समझ रहे। सपोज ये 50 वोल्ट है, ओके, इससे लिखता हूँ, बाद में रब कर दूंगा, ये 50 वोल्ट है, ये ज्यादा रहता है पास, जब फील्ड स्ट्रांग होती है तो उधर पोटेंशियल ज्यादा रहते हैं, 60 वोल्ट, ये 70 वोल्ट, ये 80 वोल्ट, ऐसा। अभी देखो गैप इसमें कम है, इसमें थोड़ा बढ़ गया, इसमें और बढ़ गया, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं, जनरली ये ओवरलुक होते हैं, है ना, गैप बढ़ा के। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है ना, फील्ड वीक होती जा रही है तो गैप बढ़ता जा रहा है, यूनिफॉर्म फील्ड है तो ये जो गैप है नहीं बढ़ रहा, ठीक। तो ये सब तुम्हें ड्रॉ करने के लिए आती है बोर्ड एग्जामिनेशन वेरी फ्रिक्वेंटली, तो इसको ड्रॉ करना, ओके। तो ये हो गया तुम्हारा, हाँ ये ले लो स्नैपशॉट इसका, ठीक है। लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक। प्रॉपर्टीज ऑलरेडी भी है ना, ये क्वेश्चन करके दिखाओ, चलो ऑल ऑफ यू गिव द क्विक आंसर। ये सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स, ओनली 1 मार्क्स का क्विक आंसर। आ गया आंसर? बीच बीच में ज्वाइनिंग लीविंग, somebody has left। सर 0 आंसर, क्योंकि क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे वर्क नहीं होता ना। हाँ इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यस दिया है ना, Yes, sir. तो वर्क डन इज 0, तो you don't have to Yes. calculate anything, they will Yes, give you sir. all the values, they will give you all the values, है ना। तो आंसर इज 0 since इक्विपोटेंशियल, और कैसे लिखेंगे, VB माइनस VA इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो VB कितना है, 2 वोल्ट, VA भी 2 वोल्ट है,
Work done is 0. No work is done against the electric field to move the charge on equipotential surface. ठीक है. Not only equipotential surface, suppose कोई point है, दो equipotential points है ना. NCERT बुक में एक क्वेश्चन है, एक चार्ज को आगे क्वेश्चन है, इनफैक्ट इसी में मैंने पेस्ट किया हुआ है वो क्वेश्चन. उसमें दो इक्विपोटेंशियल पॉइंट है. इक्विपोटेंशियल मतलब पॉइंट निकालने पड़ेंगे, उनका पोटेंशियल निकालना पड़ेगा. बोला है कि चार्ज को बी से शिफ्ट किया, बी एक्स कोऑर्डिनेट पे दिया, ए वाई कोऑर्डिनेट पे दिया, ओरिजिन पे एक चार्ज पहले से ही रखा है, और इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन को शिफ्ट किया एक कोऑर्डिनेट से दूसरे कोऑर्डिनेट. जब हम कैलकुलेट कर लेते हैं पोटेंशियल दोनों के तो सेम आ जाते हैं. तो प्रोटॉन को शिफ्ट करें या किसी और चार्ज को शिफ्ट करें तो 0 होगा वर्क डन, है ना. तो हमेशा जरूरी नहीं है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस का ही हो, इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स भी मिल जाएंगे तभी भी वर्क डन 0 होगा. आगे क्वेश्चन है वो. गॉट इट. इसके बाद है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस. सिंबल उसका यू रहेगा, कैपिटल यू रहेगा, है ना. तो हाउ डू वी डिफाइन द पोटेंशियल एनर्जी इन ऑलमोस्ट ऑल द केसेस. सभी जगह हमने पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन की है, चाहे वो ग्रेविटेशन की थी, चाहे वो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी थी. हाउ डू वी डिफाइन द पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज डिफाइंड एज वर्क डन टू प्रोड्यूस or work done to say bring the charges to their respective positions, or work done to compress the spring, or work done to elongate the spring. Whatever work we do in producing that particular configuration, that is stored in the form of potential energy in this case, or in case of gravitation also. So it is the amount of work done by the external source to bring the charges to their respective places from infinity. ठीक है. क्या प्रॉब्लम है बार बार. अच्छा ज्वाइनिंग है, इतना लेट ज्वाइनर्स हैं. ओके, ऑलमोस्ट ऑल आर देयर टुडे. टाइम रनिंग आउट. हाउ मेनी मिनट्स आर लेफ्ट. 10 minutes remaining from here. चलो ओके. तो वर्क डन होता है. पोटेंशियल एनर्जी नथिंग बट वर्क डन. तो कभी कभी क्वेश्चन तुम्हें इनडायरेक्टली दे देंगे, 2-3 चार्जेस दे देंगे, बोलेंगे वर्क डन बताओ, उनको उन चार्जेस को अपनी प्लेस पर लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा. इन अदर वर्ड्स यू हैव टू फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस, है ना. वर्क डन एंड पोटेंशियल एनर्जी दोनों सेम होते हैं. ठीक है. अच्छा हमने ऑलरेडी पढ़ा तो था पोटेंशियल एनर्जी. कहाँ पढ़ा था? फ्यू डेज बैक हमने पढ़ा है पोटेंशियल एनर्जी. वो क्या था? व्हाट वाज दैट? फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं ना. व्हाट वाज दैट पोटेंशियल एनर्जी? किसी को याद है? म्यूट करो जिसका डिस्टरबेंस आ रहा है, म्यूट इट, है ना. बोलो. वर्क डन पढ़ा था हम लोगों ने. आई मीन पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी थी. हाउ दैट इज डिफरेंट फ्रॉम दिस. यहाँ पे क्या लिखा है हमने? सिस्टम ऑफ चार्जेस, है ना. सिस्टम ऑफ चार्जेस. ठीक है. वो सिंगल चार्ज के लिए था, पॉइंट नहीं, चार्ज. वो भी सिस्टम ऑफ चार्जेस था. वो भी तो डायपोल था ना, उसमें भी तो 2 चार्जेस थे. हाँ. तो उसकी भी हो सकती है, लेकिन उन 2 पॉइंट चार्जेस को पास में लाने से, इन्फिनिटिव से पास में लाने से जो हमें वर्क करना पड़ेगा, डायपोल बनाने में जो वर्क करना पड़ेगा. थोड़ा सा म्यूट कर लो. हाँ जस्ट म्यूटेड. किसका डिस्टर्बेंस है? दोनों चार्जेस को डायपोल बनाने में जो हमें वर्क करना पड़ेगा, इन्फिनिटिव से चार्जेस को लेके आते हैं, डायपोल बनाना पड़ेगा. तो वो वर्क, वो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट इन दिस केस. और जो हमने वहां निकाला वो डायपोल बना हुआ था, उसको टर्न करने में, इलेक्ट्रिक फील्ड में टर्न करेंगे तभी भी वर्क करना पड़ेगा, राइट. उसको टर्न किया तो वो वर्क डन था. वो भी पोटेंशियल एनर्जी है इन टर्निंग. नाउ दिस इज डिफरेंट टू बिल्ड अप द चार्ज कॉन्फ़िगरेशन. सिस्टम ऑफ चार्जेस को अपने रिस्पेक्टिव प्लेस पे पोजीशन करने में जो वर्क करना पड़ता है, दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. इनफाइनाइट से लाना है चार्जेस टू देयर रिस्पेक्टिव पोजीशन फ्रॉम इन्फिनिटिव. तो लेट अस सी, 2 चार्जेस हैं, इनको हम इनफाइनाइट से लेके आते, जितना वर्क करना पड़ेगा उतनी पोटेंशियल एनर्जी. तो ये आएगा. देखो ये आंसर आना है जैसा कि ग्रेविटेशन में भी आया था. ग्रेविटेशन में याद है किसी को? ये K आया था, यहाँ पर M1, यहाँ पर M2 और नीचे R था. Yes, sir. ठीक है. और क्या था उसमें ग्रेविटेशन में? किसी को जस्ट शैल आई म्यूट द होल? ओके मैं म्यूट कर रहा हूँ. पहले आंसर दे दो कि ग्रेविटेशन में और क्या डिफरेंस था. बोलो और क्या था.
माइनस था बाहर, है ना, वो हमेशा अट्रैक्टिव रहते हैं। यहाँ पे रिपल्सिव भी हो सकते हैं, इसलिए प्लस माइनस होगा तो एक चार्ज माइनस होगा तो माइनस भी आएगा। चलो देखते हैं क्विकली। तो पहले Q1 को लाएंगे इनफाइनाइट से, तो लेट अस सी वर्क डन टू ब्रिंग फर्स्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी इज 0, व्हाई बिकॉज नो एक्सटर्नल फील्ड। देखो ये टॉपिक जो है, सी केयरफुली, ऊपर मैंने क्या लिखा है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है उस समय। एक मिनट में म्यूट कर रहा हूँ सबको। कहा गया म्यूट का, म्यूट ऑल, ओके। चलो लिसन नाउ। Work now in absence of electric field, external electric field, we are deriving first. So work done to bring the first charge from infinity is 0 because no external field is there. You don't have to do the work. W1 is 0 to bring the Q1 charge. ये वाला जब लाएंगे, field नहीं है तो work नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। Now second, work done to bring Q2 at distance r from Q1 is given by W2 is equal to Q2 into potential of Q1। ये पढ़ा था हमने। V is equal to W by Q। तो यहाँ पे W क्या हो जाएगा? W will be cross multiplying Q into V। That is what I have written here। Q into V of the charge Q1। Charge Q1 is already placed there। तो उसका पोटेंशियल लिखेंगे, कितना होगा? K Q1 by R, Q2 into V, Q2 as it is, V1 किसका है? पहले चार्ज का, K Q by R, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा प्रॉपर लिख लेंगे। W1 तो 0 है, W2 को क्या लिखेंगे? K Q1 Q2 by R। तो ये तुम्हारा फार्मूला बन जाएगा, इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। जनरली डेरिवेशन नहीं पूछते हैं, न्यूमेरिकल से डायरेक्ट पूछते हैं, बट यू शुड रिमेंबर बोथ। इसका यूनिट क्या होगा? जूल्स। स्केलर क्वांटिटी है, एनर्जी है, एनर्जी का जूल्स, इट इज द स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, देयरफॉर रिटेन द साइन ऑफ द चार्जेस। माइनस है तो माइनस पुट करना पड़ेगा। ओके, क्विकली, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्विक क्वेश्चन, क्विक आंसर दो, सॉल्व करो अपनी नोटबुक में, देन आई विल शो यू द आंसर। ओके, यहाँ पे एक पॉइंट और लिखा है, इफ आर इज इन्फिनिटिव देन पोटेंशियल एनर्जी विल बी 0, है ना, डिनोमिनेटर में है यार, राइट। हाउ दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द कूलम्ब्स लॉ? कूलम्ब्स लॉ में भी तो ये पढ़ा था हमने, ऐसा ही कुछ फार्मूला था, नीचे आर स्क्वायर था, और क्या डिफरेंस था कूलम्ब्स लॉ में? यहाँ पे अगर फोर्स है तो, और क्या डिफरेंस था? मॉड में थे चार्जेस, दैट वाज द डिफरेंस, है ना। तो two differences are there from Coulomb's law. Okay, now next, So find the answer potential is energy of 2 electron minus 2. Answer is minus 2.56 into 10 raised to power minus 13. हाँ, देखते हैं आंसर, देखते हैं। अच्छा, मैंने तो म्यूट, एक मिनट होल्ड ऑन, हाँ देखते हैं आंसर। मैंने सबको म्यूट किया था, म्यूट नहीं हुए क्या तुम लोग? How you are able to communicate me? सर हम खुद को अनम्यूट कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम है? It is not खुद को अनम्यूट कर सकते हमें हैं। अनम्यूट, अच्छा नहीं कर सकते क्या? फीचर डिसेबल चलो कर ठीक सकते है, हो। हाँ, लेकिन सर फिर किसी को डाउट आएगा तो वो पूछ नहीं पाएगा जब एबल आप कर allow नहीं सकते, करोगे तो। मैं सारा था, ठीक है, अभी डिस्टर्बेंस नहीं, चलो ठीक है। ओके, विल कंटिन्यू, जस्ट 2-3 मिनट्स आर रिमेनिंग। तो देखो, डायरेक्ट वैल्यूज पुट करनी है ना, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की। इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर दो, k की वैल्यू 9 × 10⁹, प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज, डिस्टेंस भी है, 9 कैंसिल हो जाएगा। कितना आ रहा था? मैच कर लो, आंसर सही है। माइनस बताया था तुमने, खुशी का आंसर था, यस किसका था? खुशी। माइनस बताया, माइनस Yes, sir. 2.56 × 10⁻26 जूल, ठीक है। तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, तो ये ओके, लेट मी सी, हाँ जस्ट आई थिंक 1 मिनट इज रिमेनिंग। 3 चार्जेस के लिए 3 पेयर बनेंगे। देखो 3 चार्जेस के लिए देयर विल बी 3 पेयर्स, एक ये पेयर बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, सबका अलग अलग निकाल लो और ऐड कर दो अलजेब्राइकली। 4 चार्जेस में कितने पेयर बनेंगे? 4 चार्जेस में कितने पेयर बनेंगे? कोई अनम्यूट एंड टेल मी द आंसर। 6 pairs. कैसे? ठीक है, 6 इज द राइट आंसर। एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, 2 डायगोनल, है ना, कैसे? और n चार्जेस में कितने पेयर बनेंगे? सपोज से 5 चार्जेस है तब, तो ये फार्मूला होता है। देखो ये एनसीईआरटी बुक में नहीं है, ये जनरल फार्मूला है।
n into n minus 1/2, इसको चेक कर सकते हो ऊपर। जब चार्जेस 3 n इज द नंबर ऑफ चार्जेस, जब 3 चार्जेस है तो 3 into 3 minus 1/2, 3 पेयर्स आ रहे हैं। जब चार्जेस चार्ज है, ये 4 है, ये वाला केस है, 4 into 3, 4 into 3/2 6 आ जाएगा। जब चार्जेस 5 है तो 5 into 4/2 आ जाएगा, तो कितना होगा 10 पेयर्स है। तो आइडिया लगा सकते हैं कितने पेयर्स हैं। अगर तुम्हें सपोज 5-6 चार्जेस दे दिए, मोस्ट ऑफ देम आर सिमेट्रिकल। इसमें अगर ऐसा देते हैं ना तो ये Q1 Q2 Q3 Q4 इक्वल दे देंगे तो 4 टाइम्स हो जाएगा, डिस्टेंस भी सेम है, और ये इनका 2 टाइम्स ऑफ द डायगोनली इंटरएक्टिंग चार्जेस। कैलकुलेशन थोड़ा कम रहता है, फिर अलग अलग भी दिया तो यू कैन जस्ट डू इट, है ना। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्स टू मेक और ब्रेक द सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो ये अगेन विच जो मैं रिपीट करता रहा हूँ, वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्सेज चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, वहां भी मैंने बताया था, डायपोल में भी वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्सेज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला ये है ना। तो दैट इज चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ऑफ द सिस्टम। और वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ये भी मैंने बताया, या फिर इट इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन, इसका नेगेटिव कर लो चाहे पोटेंशियल एनर्जी का चेंज। एक्चुअल में तो यही डेफिनेशन है ना, बट इन दिस केस ये दोनों नेगेटिव होते हैं आपस में, तो इसमें माइनस नहीं लगाना है, इसमें बाहर माइनस लगाना है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हमें याद रहता है, ये दोनों पार्ट हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, देखो ये तुम्हारा बोर्ड एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है। 3 पॉइंट चार्जेस 1 microcoulomb each are placed at vertices of equilateral triangle of the sides 3 mm. Find the potential energy of system of charges. डायरेक्ट क्वेश्चन, 3 पेयर बनेंगे। आर यू देयर स्टिल? तुम लोग हो कि आउट? कनेक्शन इज गॉन। अभी हो क्या? चलो फाइन, ओके, वी आर गेटिंग एक्स्ट्रा टाइम, सर ठीक है। 1 तो minute is 3 पेयर्स बनने हैं। So less Sorry? than 1 minute is left. अच्छा Less दिखाते हैं than उसमें? 1 minute is left, sir. No sir, you had started हाँ at चलो 5:59 now, so